Uh, Now I am going to discuss about the types of working capital. Before it, we have already discussed about the concept of working capital and how working capital are supposed to be calculated. What is the formula of working capital, and what do we mean by current assets, current liabilities? What are the various need of working capital? What are the objectives of working capital? These all we have already discussed in the last video lecture. Now, if I talk about the types of working capital, then working capital can be classified into two parts. Number one, on the basis of concept. Number two, on the basis of time. On the basis of concept, further working capital divided into two parts: gross working capital and net working capital. Whereas on the basis of time, the working capital is divided into again two parts. The number one is permanent working capital and number two is temporary working capital. Permanent working capital is further divided into two parts: regular working capital and reserve working capital. Whereas temporary working capital is again further divided into two parts: seasonal working capital and a special working capital. So first of all, the first part, yani on the basis of concept, there are two type of working capital: gross working capital and net working capital. First of all, we have to discuss, I am going to discuss on these two types. Number one, gross working capital. Gross working capital means the sum total of funds of the company which is invested in the current assets is known as gross working capital. Means total fund of current assets is known as gross working capital. I mean, suppose 10 crore rupees has been invested in current assets, then that 10 crore is known as gross working capital. But if I talk about net working capital, then net working capital is also known as working capital and it can be calculated as current assets minus current liabilities. अब करंट एसेट्स में करंट लाइबिलिटीज़ को घटा देंगे तब जो नेट बचेगा वही नेट वर्किंग कैपिटल होता है. जैसे मैंने ऊपर में बताया कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यानी कि 10 करोड़ अगर हम करंट एसेट्स में पैसा लगा दिए हैं तो वो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाया. लेकिन अगर कुछ लाइबिलिटी भी है, यानी हमको विद इन 1 ईयर कुछ हमको पेमेंट भी करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है या और भी कुछ क्रेडिटर्स होंगे हमारे, तो उनको देना है, तो वो सब जोड़ जाड़ के अगर हम लोग देखते हैं कि 3 करोड़ जो है हमको देना है और करंट एसेट्स में पैसा लगा हुआ है 10 करोड़, तो 3 करोड़ जो है वो 10 करोड़ में माइनस हो जाएंगे, तो टोटल अमाउंट बच जाएगा हमारे पास 10 माइनस 3 7 करोड़. तो 7 करोड़ हेयर 7 करोड़ इज़ नोन एज दी नेट वर्किंग कैपिटल. यही एक्चुअल में कंपनी का जो है, हमारे बिजनेस का जो है वो वर्किंग कैपिटल है. इसी वर्किंग कैपिटल के आधार पे जो है हम लोग बिज़नेस को रन करने का काम करते हैं. इसी के आधार पे जो है सो हम लोग बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कराते हैं. Whereas the second part, on the basis of time, there are two type of working capital: permanent working capital and temporary working capital. Permanent वैसे वर्किंग कैपिटल को बोलते हैं जो परमानेंट बेसिस पे हमको बिजनेस को वर्क करने में कैपिटल की ज़रूरत होती है, परमानेंट बेसिस पे. लेकिन टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल होता है जिसमें हमको टेम्प्रोरी बेसिस पे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. तो परमानेंट में परमानेंट बेसिस पे क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे रेगुलर वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व वर्किंग कैपिटल. रेगुलर कहने का मतलब हम लोग को हर मतलब एक टाइम फ्रेम के बाद जो है सो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है. जैसे रूम रेंट, हर महीना हम लोगों को रूम रेंट देना है और वहीं पे बिज़नेस कर रहे हैं हम लोग उसी जगह पे, तो वो जो रेंट है दैट इज़ द रेगुलर वर्किंग कैपिटल. उतना आपको वर्किंग कैपिटल रखना है ताकि आप हमेशा रेंट दे सकें. दैट इज़ नोन एज रेगुलर वर्किंग कैपिटल. रिज़र्व वर्किंग कैपिटल होता है कि कुछ आपको फंड को रिज़र्व करके रखना है कि कभी भी बिज़नेस में कुछ इंसिडेंट हो जाएगा तो उस जगह पे आपको कवर करने में आपको मदद मिलेगा. ठीक है, तो रिज़र्व वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो कि रिज़र्व रहता है कैपिटल के रूप में कंपनी के पास, और किसी ख़ास घटना पे वो फंड को हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया
कंपनी में या कोई घटना घट गया, तो उस जगह पे हम लोग वर्किंग कैपिटल को यूज़ करते हैं। टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल क्या है? ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, सीजनल और स्पेशल। टेम्प्रोरी का मतलब ही है कि कुछ समय के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। एक ख़ास सीज़न में आप देखेंगे कि बिजनेसमैन जो है, जो स्पेशल उसी सीज़न के लिए जो है सो फेमस रहते हैं, तो उस समय वर्किंग कैपिटल वो जमा रखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कपड़े का दुकान है, तो कपड़े का दुकान वाले लोग क्या करेंगे कि अगर बरसात आता है, रेनी सीज़न आता है, तो उस समय वो रेन कोट पे ज़्यादा फोकस करेंगे और उसके लिए वर्किंग कैपिटल को जमा करके रखेंगे, ताकि ज़्यादा बल्क में रेन कोट वो ख़रीद सके और कस्टमर को वो बेच सके। उसी तरह से और भी है, गर्मी के दिन में आपको वाटर बॉटल हो गया वाले लोग जो हो गए, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वाले लोग हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, तो वैसे या आइसक्रीम हो गए, तो वैसे बिजनेसमैन क्या होते हैं कि वर्किंग कैपिटल जमा करके रखते हैं, ताकि उस खास सीज़न में उसका बिज़नेस चल सके और कस्टमर आ सके और उसका परचेजिंग हो सके। लास्ट वन इज़ नोन एज स्पेशल वर्किंग कैपिटल। स्पेशल वर्किंग कैपिटल होता है कि किसी खास स्पेशल ओकेज़न में हम लोग वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करते हैं। जैसे शादी का लगन के समय में हो गया, फेस्टिवल के समय में हो गया, उस समय कुछ वर्किंग कैपिटल हम लोग जमा करके रखते हैं, ताकि अब कपड़े की दुकान है, तो उस स्पेशल सीज़न में, लगन के समय में, जिस समय पूरे देश में शादी ब्याह हो रही है, तो उस समय क्या होगा कि ज़्यादा वर्किंग कैपिटल वो मेंटेन करेंगे, ज़्यादा कपड़ा ला करके रखेंगे, ताकि लोग खरीद सकें और उस हिसाब से जो है सो उनका बिक्री हो सके। सिमिलरली उसी तरह से ज्वेलरी शॉप है, शादी के समय में जो है सो बहुत ज़्यादा लेवल पे अपने पास वर्किंग कैपिटल मेंटेन रखेंगे, ताकि ज्वेलरी उनका ज़्यादा बिक सके, ठीक है। उसी तरह से फेस्टिव होता है, जिस समय फेस्टिवल के समय में, चाहे दुर्गा पूजा हो, ईद हो, आपका दीपावली हो, उस समय होली हो, उस समय जो है बिजनेसमैन क्या करते हैं कि अपने पास वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करके रखते हैं, ताकि वो उस सीज़न में जो चीज़ का परचेजिंग ज़्यादा हो, उसका वो स्टॉक को मेंटेन कर सकें। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आया? वर्किंग कैपिटल का टाइप्स कितने हैं? वर्किंग कैपिटल को क्लासिफाइड किया गया है दो पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट एंड सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट में दो पार्ट हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड अनदर वन इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस कहने का मतलब टोटल फंड जो कि आपका सिर्फ करेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, दैट इज़ नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल कहने का मतलब है कि आप करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़, यानी करेंट एसेट्स में करेंट लाइबिलिटीज़ को घटा दिए तो वो हो गया आपका नेट वर्किंग कैपिटल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में दो पार्ट है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो कि रेगुलर बेसिस पे आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और एक है टेम्प्रोरी वर्किंग कैपिटल जो कि कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी। रेगुलर यानी परमानेंट बेसिस पे जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें दो पार्ट है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल और रिजर्व वर्किंग कैपिटल। और टेम्प्रोरी में है सीजनल वर्किंग कैपिटल और स्पेशल वर्किंग कैपिटल। रेगुलर हो गया जो कि आपको एक खास इंटरवल टाइम के बाद जो है सो हमेशा वर्किंग कैपिटल लगना ही लगना है। रिज़र्व हो गया कि खास कुछ पैसा आप रिज़र्व करके कंपनी में रख दिए हैं, ताकि कुछ इंसिडेंट हो गया या कुछ वैसा घटना घट गया है, तो उस जगह पे वो कैपिटल को आप यूज़ में लाते हैं। सीजनल वर्किंग कैपिटल है जो कि टेम्प्रोरी बेसिस पे होता है, कि खास सीज़न में, समर सीज़न हो या विंटर सीज़न हो या कोल्ड सीज़न हो, ठीक है, ये सभी सीज़न में जो है, जो बिजनेसमैन हैं जिससे रिलेटेड वो बिज़नेस करते हैं, उसके लिए वो अपना वर्किंग कैपिटल को मेंटेन रखते हैं, ताकि उस चीज़ को वो ख़रीद के प्रोडक्ट को रखे और उनके कस्टमर आकर के ख़रीद सकें। और एक लास्ट वन है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। स्पेशल वर्किंग कैपिटल होता है कि वो खास एक स्पेशल समय में, जैसे शादी का लगन के समय में या फेस्टिवल के समय में, ये सब जो है वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करके रखते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, और वी कैन से दैट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स which can affect the requirement of working capital in the business. So today at this point of time I have completed the portion of types of working capital and the concept of working capital, need of working capital and objective of working capital. Next class होगा that it will be based on the factors or
factors which can affect the working capital requirements of a business. Thank you.